हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक सेकेंड मैं जस्ट फर्स्ट पहली लाइन सेट कर लूँ। ओके आई गेस सो। I have to make it smaller. I guess so I have to make it even smaller. Yeah, good to go. अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। 970951 अक्टूबर नवंबर 2020। आई गेस हमारे कितने पेपर्स 2020 से स्टार्ट किए थे गेस, राइट? सो आई गेस सो दिस इज़ द फोर्थ पेपर। ओके लेट्स सी कितने क्वेश्चन इस पेपर के। 7 क्वेश्चन, राइट? चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कितना रहता है। क्वेश्चन 1 क्या है? 2 ऑर्डिनरी फेयर डाइसेस, ठीक है, 1 रेड है और अदर ब्लू आर थ्रोन। इवेंट ए है जी, इज अ स्कोर ऑन द रेड डाई इज डिविजिबल बाय 3। इवेंट बी क्या कहता है? इज द सम ऑफ द 2 स्कोर्स इज एट लीस्ट 9, ठीक है, और कॉमन चीज़ क्या उसकी, ठीक है जी। ओके अगर हम एक सेकेंड। ओके एक रेड करना और एक ब्लू करना, राइट? सो फेयर डाइसेस हैं, सो आई वुड से दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, राइट? नो लेट्स पॉइंट आउट कि ठीक है 6 6 1 2 3 4 5 6, right? Wait a second. 1 2 3 4 5 6, right? ओके क्या कहता है कि सम लेना हमने दोनों नंबर्स का, राइट? सो सम लेते हैं जी। लेट्स टेक ए पर्पल 2, ओके 3 is 4, this is 5 and this is 6, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7, this is 4, this is 5, this is 6 7 8, right? This is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and this is 9, right? Okay, this is 6 7 8 9 10, this is 7 8 9 10 11, right? Wait a second. Okay, I did mistake. This is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11 and this is 12, right? Okay, good to go. The first okay, the sum of the 2 scores is at least 9. Where are at least 9? No 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 no, this is 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 this is, right? Okay, the question says both the things, right? the अच्छा चेक करते हैं इसका कि इवेंट ए हमारा क्या है। The score on the red die is divisible by 3. Okay, what scores are divisible by 3? This is divisible. Okay, wait a second. This is divisible by 3, this is this is this is and this is, so basically 1 2 3 4 5 5। ऐसे नहीं करेंगे हम, प्रॉपर लिखेंगे। probability of A union B is 5 divided by 1 2 3 6, this is 36, right? This will be the probability. Okay, course part view,
hence determine whether or not the events A and B are independent. Okay, it will be probability of A intersection B is equals to probability of A multiplied by probability of B. Okay, this is 5 by 36. Probability of B is the sum of the two scores is at least 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? This will be 10 by 36. Now probability of A, the score on the red die is divisible by 3, so die can either be 1 2 3 4 5 6, 2 and 6 out of 6, right? 2 out of 6. Okay, let me use calculator for both sides. 2 upon 6 multiplied by 10 upon 36. Okay, this is 5 upon 54, 5 upon 36. So we will write not dependent, right? Easy peasy question. Okay, now question 2. Question 2 says the probability that a student at a large music college plays a band is 0.6. Okay, now we will write band. No. A student at a college music. Okay, this is college. Okay, plays a band. Plays a band is 0.6. Okay, for a student who plays in the band, the probability she also sings in the choir is 0.3. Sings, probability of not singing, sings dash, it is 0.3, so this will be 0.7, right? Okay, for a student who does not play the band, the probability that she sings in the choir is x, so it will be no band, right? This will be then 0.4, right? And then the person says that the probability she sings in the choir is x. Sings, not sings, right? Sings, sings. For a probability the randomly choose student on in the choir is x, then this will be 1 minus x, simple. Okay, the randomly chosen student from a college does not sing in the choir is 0.58. Does not sing. Okay, this will be branch, this branch will be used, and does not sing, this will be used. Okay, these two branches, right? So it will be 0.6. Let's write it down at the 0.6, 0.7 plus 0.4, 1 minus x is 0.58, right? No, just simplify it, find the answer. Let me see the answer, right? Answer is 0.6, right? If this is 0.6, it means 0.6, this is 0.4, right? Okay, okay, the two students from a college are chosen at random. Find the probability that both students play in the band and both sing in the choir. Plays in the band and sings in the choir. ठीक है,
अब इसको करें 0.6 and then comes 0.3. What will it be? Let me see. 0.18, right? Okay, the success rate is now 0.18, right? So both place the band success power square, right? So 0.18 square, this will be 0.324. Easy peasy. Question 3. The Kayla is competing in a throwing event. A throwing is counted as a success if the distance achieved is greater than 30 meters. The probability that Kayla will success in any throw is 0.25. Is 0.25 and the rejection will be 0.75. Easy peasy. Okay. Okay, the question is find the probability that Kayla takes more than 6 throws to achieve a success. Wait a second. More than 6 throws to achieve a success. सो हमने दो रूल पढ़े हुए हैं कि अगर तो आपके पास हो जाए x इज़ ग्रेटर देन समथिंग हो जाए तो हम क्या करते हैं q पावर r, और अगर कोई सी चीज़ का लेस देन इक्वल टू बॉक्स आ जाए उसका क्या होता है 1 माइनस क्यू आर. तो ये वाली सिचुएशन ये है. तो इट विल बी q पावर r which will be 0.75 पावर 6, राइट. ओके, इसका आंसर आ रहा है 0.178. इजी पीजी. अच्छा जी, आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सैम्पल ऑफ 10 थ्रोज केला चूजेस एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. उसके पास एटलीस्ट 3 सक्सेसेस आ रही हैं. 10 थ्रो की हैं. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो ज़ीरो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कि सक्सेस हुई है कि हुई नहीं है. ठीक है, एक बार सक्सेस, दो बार सक्सेस, 3 बार सक्सेस. तो हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट 3 सक्सेसेस है ना, राइट. तो ओ आइडिया मेरे पास कि आपकी कह रही है कि एटलीस्ट 3 सक्सेसेस, मतलब आपकी ये सारी सक्सेसेस हुई हैं. मैं बताता हूँ, राइट. ये सारा आपका सक्सेस, ये सक्सेस मटेरियल है सारा. राइट. हमारे जो निकालने का हमारा जो मतलब है ना वो ये है. ठीक है, यानी 1 से इसको माइनस करूँगा तो ये सारा कुछ आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 3 successes is 1 minus probability of 0 1 2, right. So this will be n is 10, probability is 0.25 and failure is 0.75, right. okay, अब क्या करेंगे 10 no, it will be 1 minus 10 c 0 0.250 0.75 10 minus 10 c1 0.251 0.759, right. This will be 10 c2 0.25 to 0.758, right. So just put it in the calculator, hold the expression, so you will get 0.474. easy peasy. ये मैकेनिक्स से बहुत आसान पेपर होता है. मैकेनिक्स तो भाई एक बार हालत ट्रेड कर देता था. अच्छा, द रैंडम वेरिएबल एक्स, ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 2 3 4, द प्रोबेबिलिटी 1 before 2 independent values of x are chosen at random. If the two values of x are the same, the random variable y takes that value. Otherwise, the value of y is equals to the larger value of x minus the smaller variable x. ठीक है, ये करते हैं जी. डाइसिस टाइप क्वेश्चन है.
एक मिनट. Okay, 1 2 3. Let's put them at distance. 1 2 3 4, right? This will be 1 2 3 4, right? सो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, अगर तो वो सेम है तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, और अगर सेम नहीं है तो बड़े छोटे से माइनस हो जाएगी. दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, no, this is 1, yes, this will be 1. 3 minus 1 is 2, 4 minus 1 is 3, 1 minus 2 is 1, 2 is 2, 3 is 1, 4 is 2, 1 minus 3 is 2, 1 3, and this will be 1, this will be 3, this will be 2, this will be 1, right? Okay, and this will be 4. Now the question says find up the probability for the distribution table for y. Easy peasy. Oh, wait a second. 1. Okay, this will be some value of y, probability of y. So your y can either be 1, it can either be 2, 3 or 4, right? It could be 1, could be 2, could be 3, and could be 4. Simple. Let's just see the total outcomes, right? 4, 8, 12 and 16, right? The question says how many ones? 1 2 3 4 5 6 7. 7 upon 16. Wait a second. 7 upon 16. No, count number of twos. 1 2 3 4 5. 5 by 16. Now comes the number of threes. 1 2 3. 3 by 16. Now count the number of fours. 1 by 16, right? Okay, the next question is find the probability y is equals to 2 given that y is, ठीक है, probability that y is equals to 2 given that y is even, right? Always make that expression. क्या आपको पता है कि जो given के बाद आता है वो बाद में आता है. y is even, y is equals to 2, probability multiply by probability, y is even, right? Okay, find the probability that y is equals to 2 and y is even. Of course 2 is already okay, it will be, oh, let's remove the coloring. Okay, the question says y is equals to 2 and y is even. Y is equals to 2 and y is even. 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, right? This will be 5 by 16. And what is the probability y is even? Wait a second. 1 2 3 4 5 6, right? 6 by 16. Let me find the answer. Okay, the answer is 0.8333, right? Easy peasy. Now comes the question number 5. Question 5 is the time in hours that Devon plays on his game machine each day is normally distributed with the mean of this standard deviation 0.9.
Find the probability that on randomly chosen day, Devon plays on his game machine for more than 4.2 hours. So this is mean is 3.5, standard deviation is 0.9. Okay, find the probability that Devon plays on game for more than 24.2 hours. This will be probability of x is greater than 4.2 hours, right? So probability of z is greater than 4.2 x minus mu, wait a second, x minus mu divided by standard deviation. This will be z is greater than 0.778, right? I have taken this okay, wait a second, uh, let me calculate this. 4.2 minus 3.5 divided by 0.9, 0.778, right? This is the z value. Let me make it, wait a second. This is the z value is greater than 0.778, राइट? अब हमने जो भी एरिया निकालेंगे ना टेबल से वो ये वाला आएगा, फिर उसको माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 4.2 इज़ 1 माइनस द वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू, राइट? सो अगर हमने जो टेबल से चेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.77 आई गेस 94 आएगी और प्लस 24 आएगी, ठीक है? और मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं आपको निकाल देता है। आपके पास आएगी 0.7818, राइट? सो दिस विल बी 0.7818, so this value is going to come out 0.218, राइट? इजी पीजी। अच्छा जी, आगे क्या है? on 90% of the days Devon plays on his games machine for more than t hours, find the value of t, right? So 0.90% means 0.90, this is the probability, right? So what's this, x is greater than t is 0.90, easy peasy. Okay, what's the mu value is 3.5 and standard deviation is 0.9, right? Okay, this will be p is greater than t minus 3.5, 0.9 is equals to 0.90, right? Okay, the value you are going to find it on your z table will be, it will be 1.2, it will be, okay, it I have to clear it, this is z, right? So the value you are going to find on 0.90 probability, the value for z will be 1.281, right? Now we have to find the value of t, which will be 1.281, 2 minus 3.5, 0.9, right? So this will be t is equals to 2.35. This is the answer, right? Easy peasy. Okay, the next question is, calculate an estimate for the number of days in a year on which Devon plays on his game machine for between 2.8 to 4.2 hours. This is easy peasy too. I just want values, डायरेक्ट वैल्यूज चाहिए, टाइम नहीं है, आधी रात को भाई फ़ोन शूट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ t is greater than 2.8, less than 4.2 hours, right? So I just remember mu was 3.5, standard deviation was 0.9, मुझे तो याद हो गया। अच्छा जी, probability of z was greater than
2.8 minus 3.5.9. Okay, this will be 4.2 minus 3.5.9. The value we will be getting is minus 0.7778. So this will be 0.777 something. I don't know. Let me see it clearly. No. This is 0.7718 and this will be 0.777, right? So how we going to deal with this is how हम सबसे पहले ये बनाएंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे इज़ ग्रेटर देन 0.77, राइट। तो यहाँ पे आप समझिए ये वैल्यू है आपकी और आप मार्क कर रहे हैं 0.7718, राइट। अब इसकी वैल्यू उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी 0.77718 जी की वैल्यू है, राइट। तो हम जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे और आपके पास वैल्यू है 0.77 वाली, राइट, वो मैं कर देता हूँ इससे, राइट। इट विल बी 0.777, राइट। हमें जो एरिया चाहिए ये वाला चाहिए, राइट। तो हमें तो ये वाला अभी लाइन मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली दिस विल बी एंड दिस इज़ ओके। हमें तो ये वाला एरिया चाहिए, जो टेबल से हमें एरिया मिलेगा वो इस साइड का मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास अब वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसकी निकाल देता हूँ ना कि आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 1 माइनस 0.78, मैं टेबल से वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। 18.1.2182, राइट, और 2182 आई गेस, और नीचे आएगी, एक सेकेंड रुकिए मेरे पास नहीं है वैल्यू 0.7818 राइट। और फिर जब हमें दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.5636 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एरिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 0.5636 डिवाइड बाई 1, टोटल 365 टोटल डेज हैं, ये चेक करें। यप, इधर से आपके पास आंसर आ जाएगा 205.7 और जिसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 205 डेज, राइट। इजी। अच्छा, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को भी करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 7। वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या है कि शॉपकीपर है, 10 लेटर्स हैं, 3 E's आर टुगेदर, राइट। वेट अ सेकेंड, थ्री इज टुगेदर इट्स मीन्स 3 फैक्टोरियल, पीछे 7 डैशेस रह जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, so it means 8 factorial, so this will be 8 factorial, 3 factorial, रिपीट कितने का है
1 2 3 और कौन सा रिपीट है, पी का रिपीट भी है, पी पी राइट। सो कितने हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल राइट। सो आंसर आ रहा है 20160 वेज राइट। आगे आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 10 लेटर्स ऑफ द शॉपकीपर्स कैन बी अरेंज सो दैट द पीस आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, पीस आर नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो हम यहाँ पे निकालते हैं, पीस नेक्स्ट टू ईच अदर राइट। पहले निकाल लेते हैं इस 2 फैक्टोरियल राइट। पीछे कितने बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस विल बी 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। रिपीट कितने का था 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल राइट। सो आंसर आएगा 60480 वेज। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि टोटल निकालना है, टोटल वेज। वो कैसे निकलेगा, कितने वर्ड्स हैं 10 फैक्टोरियल और रिपीट कितने का 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल राइट। और आंसर आएगा 32460 वेज राइट। और अब क्या होगा, पीस नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका क्या होगा 460 माइनस 60480, दिस विल बी 241920। इजी पीजी। आगे क्या है, एक सेकेंड आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन अरेंजमेंट ऑफ द 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड शॉपकीपर्स हैज़ एन ई एट द बिगिन एंड ई एट द एंड राइट। क्या होगा 1 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्रोबेबिलिटी मैंने खुद मिस कर दी था अभी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो क्या है ई एट द स्टार्ट ई एट द एंड राइट। पीछे कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 हाँ ठीक है 8 फैक्टोरियल ई। ठीक है, और अब ई आपका रिपीट हो गया तो ई नहीं आ गया तो अब खाली 2 फैक्टोरियल होगा नीचे। ठीक है, ये चेक करें, आपका ई यूज़अप हो गया, इसको क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, अब कितने पीछे रह गए हैं, ये पी रह गया और ये पी रह गया, एक एक रिपीट रह गया। तो इसका आंसर होगा 20160। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताएं, तो क्या होगा 20160 टोटल कितनी है 302 460 राइट। टोटल इतना है 302 460, it will be 1/15 easy। 4 letters are selected from 10 letters from the word shopkeeper, find the number of different selections if the 4 letters include exactly 1 p। तो ठीक है, दूसरे रिपीट्स भी तो होंगे ना ऑफ कोर्स। तो बेसिकली क्या सिस्टम है, एक मिनट, ये पी है ये पी है, ई है के पास ई है ई है और ई है, ये वाली रिपीट्स में एग्जैक्टली 1 पी होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, आपके पास क्या है, इसको छोड़ के पीछे कितने बच जाते हैं, पीछे बच जाते हैं 1, ओहो एक मिनट 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बच जाते हैं। ठीक है जी, अब करते हैं 1 2 3 4 5, नहीं 4 है। ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। चेक करते हैं कितना आ रहा है। सबसे पहले एक आ रहा है आपके पास एक पी ओ, ठीक है, और पीछे रह गए 3, ये क्या हो जाएगा 5C3। टोटल 1 2 3 4 5 बच गए थे राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये तो 10 होता है गैस। सो यहाँ पे अगर आपके पास एक पी हो और दूसरा पी भी हो, अब क्या होगा 5C2
आई थिंक ये भी 10 होता है मेरे ख्याल में। अब क्या हो कि आपके पास पी हो और साथ, एक सेकेंड, एक पी हो, एक सेकेंड लेट मी थिंक, नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैंने सही पढ़ा नहीं है। अच्छा, और एक ई हो, अब 5C2 बनेगा राइट, क्योंकि पी एक ही होना चाहिए। 10। अच्छा जी, एक और है, ये पी हो 2 ईज हो जाए, ये कितना हो जाएगा? 5C1 हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये कितना होता है। ये पी हो और तीनों ईज हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 5C0। 5C0 लेट मी चेक कितना होता है। ये 1 होता है, ये कितना होता है? 5C1 इज़ 5, तो ये टोटल कितना बना? 20, 25, 26 राइट, राइट 26 आ गया, ठीक है। अच्छा जब ये लास्ट रह गया, अच्छा जी ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टाइम टेकन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम टेकन बाय 150 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट पर्टिकुलर चैलेंज और समराइज इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कह रहे हैं 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, 100 है, 12, 48, 106, 134, 150 राइट। अच्छा जी राइट, एक सेकेंड, ठीक है जी। और एक हो सकता है आपका, ठीक है जी, ओके। और ये कितना कितना आ रहा है? अच्छा, टाइम टेकन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, टाइम सेकेंड, टाइम मिनट्स में सॉरी, राइट। और क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड पे आ जाएगी, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे हमें पता है कि 0 से 20, ये 20 से 30 हो जाएगा, ये 30 से 40 हो जाएगा, ये 40 से 60 हो जाएगा, और ये 60 से 100 हो जाएगा, ठीक है, ओके। गैप कितने कितने का है? 20, 30, 40, 20, 20 का गैस हो, 20 नहीं, ये हो जाएगा 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 राइट। दूसरा कौन सा है? 150 तक जा रहा है, तो आई वुड से 20, 20 का ही होगा। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है जी, ओके। अब पॉइंट्स लगाने होंगे, हाँ, ज़ीरो पर एक पॉइंट लगाने हैं, ठीक है जी, 0, 0 पे। अच्छा, और कौन सा लगाना है? 20 पर 12 लगाना है, 20 पर 12 लगाना है, 12, तो ये आई थिंक ये 10 है, तो 2, 2 का ब्लॉक है, 20 पर 12 लगाना है, 30 पर 48, 30 पर, ये 30 है, और ये 48, ठीक है। और क्या है? 40 पर 106, 106 इज 246 राइट। 60 पर 134, 60 पर 134, 2 एंड 4 राइट। अगला कौन सा है? 100 पर 150, 100 पर 150 राइट। अब इसको ज्वाइन करना हमने ग्राफ को, ये होगा राइट।
आई वुड से प्रॉन्स अब थोड़ा सेंस बना रहा है ये ग्राफ। अच्छा आगे है 24% ऑफ द स्टूडेंट्स टेक एक्स मिनट्स और लॉन्गर टू कंप्लीट अ चैलेंज, यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, लॉन्गर से एंड मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है कि अपर बाउंड से कह रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि 24 डिवाइड बाई 100, लेट मी सी, ठीक है, और इसको 100 से माइनस करेंगे 0.76, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से 150, लेट मी सी कितना आ रहा है, 114 आ रहा है। ठीक है, अब 114 पे जाते हैं, 10 114 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये 1110 है, ये 12 है और ये 114 है। सो दिस इज़ ठीक है जी। तो ये कितना आ रहा है 42 40, ये 50 है ना, तो ये 44 है। ठीक है 44 सही है। अच्छा जी, आगे क्या है कि कैलकुलेट द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टाइम टेकन टू चैलेंज। ठीक है जी, अब इस उठा लेते हैं सारे को। ओके इसको उठाता हूँ, एक सेकंड की। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए, एक सेकंड केगा। ओके हम एक सेकंड कर लेते हैं इसे। इसका अच्छा इसकी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, अब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एक सेकंड केगा। ठीक है ओके, नहीं आई थिंक ओके यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा 12। अच्छा 14 8 माइनस 12 कितना आएगा 36। 106 माइनस 48 कितना आएगा 106 माइनस 48 58। 134 with 106 28, right? Okay, 150 minus 134 is 16, right? ओके अब क्या करना है हमने, अब इसका मिड पॉइंट के लिए ऊपर लिख लेते हैं। ये 0 से 20 जा रहा था, ये 20 से 30, ये 30 से 40, ये 40 से 60, ये 60 से 100, राइट। अच्छा इनका मिड पॉइंट क्या होगा, अब ये चेक करना है। मिड पॉइंट ठीक है, वो क्या होगा 10 25 35 50 80 मिड पॉइंट्स आ गए इसके, राइट। अच्छा जी, अब मिड पॉइंट्स किसके लिए लेना चाहिए मुझे, ठीक है। टेबल बना के जाए ना शुरू में तो इजी हो जाएगा, मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं।
ठीक है जी। 100 625.225, उसके बाद है 2500 और आखिर में 6400, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हमने सबसे पहले निकालना है मीन। मीन कैसे निकलेगा आपका? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एफ एम क्या है? एफ एम, राइट। तो ये हो जाएगा 12, 10, 36, 25, 58, 35 प्लस 28, 50, 16, 80, राइट। और आंसर था टोटल 150 का, राइट। तो आंसर आएगा आपका 38.2। एक चीज़ हो गई, और क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाता है सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा होगा? 150 माइनस 38.2 का स्क्वायर, चेक करें, राइट। इतनी सी बात है। और एफ एम स्क्वायर चाहिए अब हमें। ये हमें क्या चीज़ चाहिए? ये और ये, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है जी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, एक सेकंड निकाल ले लें, 267, एक सेकंड निकालना ही पड़ेगा। अच्छा जी, निकालते हैं 1200। नहीं, यहाँ पे आसान है निकालना इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, और ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, राइट। ओके, थर्टी एट का 35 का स्क्वायर, 28, 50 का स्क्वायर प्लस 16, 80 का स्क्वायर। एक मिनट, आंसर आ रहा था मेरा 267,150 अपॉन 150, और यहाँ पे लिख देता हूँ 267,150। सो इसका आंसर आएगा 17.9, राइट। ये था आपका टोटल आंसर, ठीक है जी। ये पेपर इतना सा था बस। इस तरह के टेबल्स में ना फ्रीक्वेंसी अगर बना ये करें, मिड पॉइंट भी, मिड पॉइंट का स्केयर भी आसान हो जाता है। ऊपर ही सारी वैल्यूज़ लिख लिया करें। प्रॉपर ग्राफ की स्केचिंग वगैरह स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते थे, राइट। पता है आपको? फॉर एग्जांपल अगर आपको होता ना ये, मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये यूँ भी हो सकता था, एक सेकेंड में देखिएगा। ओके, ये हो सकता था यूँ, 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 यूँ। ये यूँ भी पॉसिबल था, अलाउ है हमें। ए लेवल्स में ये चीज़ अलाउ है, ठीक है। ओ लेवल्स में नहीं है। ये हो गया हमारा एंड।